آئے میرے ساتھ مل کر نکالیں گے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب اور اس کی 31ویں آیت جو پمفلٹ پہ دی گئی، پینافلیکس پر دی گئی. ہم اس کو اپنی تربیت اور نصیحت کے لیے دیکھیں گے. یہاں پر خدا کا نبی جس کو خدا نے اپنے کام اور خدمت کے لیے چنا، خدا نے ایک بڑا کلام اس کے منہ کے اندر رکھا اور وہ کہتا ہے اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو. کیا میں اسرائیل کے لیے بیابان یا تاریکی کی زمین ہوا؟ آگے کوسچن مارک دے رہا ہے اور پھر کہتے ہیں میرے لوگ کیوں کہتے ہیں ہم آزاد ہو گئے، پھر تیرے پاس نہ آئیں گے. آج کے کلام کا عنوان ہے اے اس پشت کے، خدا کے کلام کا. یہ خدا کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہمارے باپ دادا سے تو نہیں کہہ رہا، ہمارے پچھلوں سے تو نہیں کہہ رہا. وہ جڑے مر کھپ گئے جنہ دی ہڈیاں بھی ان ختم ہو گئی، خدا ان سے کلام نہیں کر رہا. خدا ہماری آنے والی جنریشن سے کلام نہیں کر رہا. بھائی انہاں دی سٹ دے رہندے ایک دوجے تے، کدے نال کر رہے؟ اے کون ہے؟ او نہیں جی، ہالےلویا، او نہیں جی، او نہیں جی. آج کون ہے؟ اے ہاتھ رکھو ذرا. آج کدے دی کلام ہے؟ او دے لی کلام نہیں رکھو بھائی. اسی یہ کہنے ہیں او انج کر گئی، او اونج کر گئی. وہ کہتا ہے اے کون ہے؟ اے ہالےلویا. انہاں نال کلام نہیں جڑے مار کھپ گئے. بھئی کلام ہمیشہ زندہ ہے اور یہ زندہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. ہالےلویا. آج کا کلام یہاں بیٹھی ہر ایک زندگی کے لیے ہے. ہالےلویا. آج کا کلام ہر مرد کے لیے ہے. آج کا کلام یہاں بیٹھی ہر عورت کے لیے ہے. آج کا کلام یہاں بیٹھے ہر جوان کے لیے ہے. آج کا کلام یہاں بیٹھی ہر ایک نوجوان بیٹی کے لیے ہے. آج کا کلام جو آپ کی گود کے اندر بچہ ہے یہ اس کے لیے بھی ہے، نہ یہ پچھلوں کے لیے ہے نہ یہ اگلوں کے لیے ہے، بلکہ یہ کلام آج کی نسل کے لیے. اور وہ کہتا ہے اے اس پشت کے جڑے بہت ہی بگڑ گئے، اے اس پشت کے. سمجھ آئی اے کا کی مطلب ہے؟ ذرا دل دے ہاتھ رکھو. آج تک کلام کدے لئیے؟ اے بولو اے. نہ نہ میرے شیرے نہیں بولو میں اے، کیونکہ اے سامنے ساڑھا کلام تھا. کی یہ اے اس پشت کے لوگوں، او نہیں اے جڑے موجود نے. کہتا ہے اے اس پشت کے لوگوں کیا کرو؟ اپنی مرضیاں کرو، جو مرضی کرو. بس سنڈے نو حاضری دے دو، باقی جو ہے خدا نے آزاد چھڑے اپن. یہاں پر وہ کہتا ہے اے اس پشت کے. پشت کا مطلب خاندان، نسل. آج ہم اس گھر کے اندر ہیں، کلیسیائی سطح پر چاہے آپ کے چرچز الگ الگ ہیں، مگر ہم آج اس جگہ پر خاندان کی صورت میں جمع ہیں اور ہم سب خدا کے بدن کے اعضاء ہیں اور خدا ہم سب سے محبت کرتا ہے. ہالےلویا. اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو وہ کوڑے بھی لگاتا ہے. جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے. جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کی تربیت بھی کرتا ہے. جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کے پاس آ کر اس کو سمجھاتا بھی ہے. جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کو تربیت بھی کرتا ہے، اس کو نصیحت بھی کرتا ہے، اس کو بچاتا بھی ہے، اس کو چھڑاتا بھی ہے. چاہے وہ کیسے بھی حالات کے اندر ہے، چاہے وہ مایوسی میں آیا ہے، چاہے وہ غربت میں آیا ہے، چاہے وہ تنگی میں آیا ہے، آج خدا اس پشت کو آزاد کرنے جا رہا ہے. مگر وہ شرط کی ہے اے اس پشت کے لوگوں کیا کرو؟ لحاظ کا مطلب ہے غیرت. خدا دے کلام دی
पर कईयों को शर्म नहीं आती, सख्त लफ्ज नहीं बोल रही, ये आपको सुनने में लग रहे हैं, मगर जरूरत है हमें। हमने नामी मसीही बन गए हुए हैं, कलाम की शर्म हमारे अंदर है। कैरेक्टर एंड कितने गम और दुख के साथ खुदा कह रहा है, वो कह रहे क्या इस्राएल बियाबान में तारीकी की जमीन है? क्या ये तारीकी की जमीन है? भाई दुनिया का नूर यीशु मसीह मेरी अगर जिंदगी के अंदर है तो फिर गुनाह मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अगर यीशु मेरे अंदर है तो दुनियादारी मेरा हिस्सा नहीं है। अगर यीशु मेरे अंदर है तो दुनिया की लाइफस्टाइल मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर यीशु मेरे अंदर है तो फिर मेरी जिंदगी के अंदर उसके कलाम के चश्मे जारी होने चाहिए। अगर यीशु मेरे अंदर है तो फिर तरीकी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अगर यीशु मेरे अंदर है तो फिर यहां से जिंदगी के चश्मे जारी होने चाहिए। वो कम ज्यादा है, वो कहते हैं ये मेरे नाम से कहलाते हैं मगर इनके अंदर मुझ जैसी है कोई खूबी यीशु की। कहते हैं इस पुष्ट के लोगों, कौन सी चीज आपकी खुदा की जात के साथ मिलती है? घर में आपका रवैया कैसा है? आप कितना वक्त खुदा के साथ गुजारते हैं? खुदा दुख से भरा हुआ है, वो कहता है मैं बियाबान, आपका खुदा बियाबान है, आपका खुदा मायूस है, आपका खुदा गरीब है। आज क्यों घरों के अंदर गुर्बत है? आज क्यों कलीसियाओं के अंदर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं है? आज घरों के अंदर दुआया मसबे नहीं है, वर्शिप नहीं है, कलाम नहीं है। कलीसियाओं के अंदर भी रस्मी तौर पर हम जाते और आते हैं, रूटीन बन गई हुई है। वो कहता है इस पुष्ट के लोगों, खुदा के कलाम का भाई शर्म करो, लिहाज करो, तवज्जो करो, पासदारी करो, ख्याल करो कि तुम्हारी गवाही तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे खानदानों के अंदर, इस शहर के अंदर, दूसरे शहरों के अंदर कैसी है। आपके पड़ोसी से आपकी गवाही ली जाए, सही आएगी। मैं अदालत नहीं कर रही, मुझे ये कलाम खुदा ने दिया है। जब मैं दुआ में थी, खुदा ने कहा इतनी शिफाओं के लिए दुआएं हुई, इतने मोजज़ात के कलाम सुनाए गए, मगर बियाबान ही है सब कुछ। खुदा रो रहा है, खुदा रो रहा है इस नस्ल पर। वो कहता है ऐ इस पुष्ट के लोगों, खुदा के कलाम का ऐ इस पुष्ट के लोगों, खुदा के कलाम का कोई लिहाज नहीं। आजकल के जमाने में कोई लिहाज नहीं। इधर किसी को बात करके देखे, कहना मैं नहीं सुनता किसी की, मैं बड़ा बदतमीज हाँ। मैं की हूं, मेरी पछाण की है ते बाहर मेरी पछाण की है, मैं क्रिश्चियन कार मैं की है, मैं बड़ा बदतमीज है। मेरा गल ना करे, मैं बड़ी बदतमीज हाँ। मैंने कोई एक सुनाए तो मैं ते बाहर मैं की हूं, आई एम क्रिश्चियन, आई एम। मैं ते अपने प्यो का लिहाज नहीं लेंदी, दादे का भी नहीं, पास्टर का तो बिल्कुल ही नहीं है। पास्टर का ते जिहदे नाल खुदा ने सानू किसी लीडर ना रखा है, ओदा ते हम साथ हैं, हम आपका कहा मानेंगे। पता नहीं केड़ी अगले जमाने च मनांगे, मर्जी।
مرضی کیا کرنی ہے؟ کیونکہ زندگی میری ہے. یہاں پر وہ کہہ رہا ہے میں بیابان نہیں ہوں. جو زندہ لیڈر ہوتے ہیں وہ مردوں کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ بات یاد رکھیے گا. خدا کریکشن کر رہے ہیں، کاٹے گا آپ کو. میں یہ نبوت کر رہی ہوں. جو لوگ لیڈرز کا لحاظ نہیں رکھتے اور زندہ لیڈر اور ٹھیک ہو، چلو لیڈر خراب ہو ایسے نہ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے. میں خود بھی نہیں کرتی، میں نہیں کرتی لحاظ. لیکن اگر لیڈر زندہ ہے، اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے، تو آپ کو لیڈر کے ساتھ وفادار ہونے کی ضرورت ہے. اے اس پشت کے لوگوں کیا کرو؟ یہ مطلب کی ہے ہوں بول دیں ہم کی آ رہی بھی. میں آپ کی انسلٹ کرنے کے لیے نہیں آپ سب کو بلایا. یہ جس نے بلایا یہ وہ کر رہا ہے کلام. کس نے بلایا آپ کو؟ کلام کون کر رہا ہے؟ وہ کی کہہ رہے ہیں. اگر ہم کلام کے دائروں کے اندر آ جائیں گے، ہمارا لائف سٹائل بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا کام کرنے کا طریقہ کار بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے اندر زندہ خدا کی محبت آ جائے گی جو ہمیں اس کی قربتوں میں لے جائے گی. ہاللیلویا. وہ کہتے ہیں کیا میں بیابان ہوں؟ خدا بیابان تو نہیں، خدا تاریکی تو نہیں، خدا گناہ تو نہیں. خدا کیا ہے بھئی؟ وہ رب الافواج ہے، قوموں کا رب ہے. وہ کہہ دیتا ہے زمین بن جائے تو زمینیں، وہ کہہ دیتا ہے پہاڑ بن جائے تو پہاڑ، وہ کہتا ہے آسمان تانا جائے تو آسمان، وہ کہتا ہے سمندر میرے بندہ کو راستہ دے دے تو آپ کے خدا کے کہہ دینے سے سمندر 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے. آپ کا خدا قادر مطلق ہے اور اس کے کلام کے اندر قدرت ہے. جب وہ کلام کرتا ہے تو اپنی قوموں کو چھڑا کر لے جاتا ہے. ہاللیلویا. جب وہ کلام کرتا ہے تو زمین پر بڑے بڑے معجزات رونما ہوتے ہیں. جب وہ کلام کرتا ہے تو وہ اس کلام کو کر کے اپنے کلام کے پیچھے کھڑا رہتا ہے، وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے. ہاللیلویا. کیونکہ وہ صادق القول ہے. وہ کہتا ہے ایک ایسی پشت ہے جو اپنی نگاہ میں کیا ہے. وہ کہتا ہے میں توبہ کر لی اب خدا کے پاس بار بار جانے کی. بھئی مجھے تو زندگی کی ہر سانس کے ساتھ میرے خدا کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. مجھے تو اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ خدا کی حضوری میں جانے کی ضرورت ہے. مجھے تو زندگی کو گزارنے کے لیے ہر دن اس کے پاس، اس کے قدموں میں، اس کی بارگاہوں میں جانے کی ضرورت ہے. مجھے زندگی گزارنے کے لیے ہر وقت اس کے زندہ کلام کی ضرورت ہے. مجھے زندگی کے ہر معاملے میں اس کے کلام کی ضرورت ہے. مجھے اپنی لائف کے ہر ایک ڈیسیژن کو لینے میں اس کے کلام کی ضرورت ہے. مجھے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہر وقت اس کے روح کی اور اس کے کلام کی کیا ہے. بھئی یہ کلام ہے اور اس خدا کا ہے جو وعدوں کا سچا خدا ہے. یہ آپ کی نسلوں کو بدل کے رکھ دے گا. یہ آپ کے گھروں کی حالت کو بدل کے رکھ دے گا. جب آپ اس کا لحاظ کریں گے تو یہ آپ کی تاریک زندگی کو روشن کر دے گا اور یہ روشنی دوسروں تک جائے گی. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے اس پشت کے لوگوں، ایک پشت سدوم اور عمورہ کے اندر تھی، بڑی بگڑی ہوئی قوم. سدوم اور عمورہ کے اندر بہت ہی عجیب قسم کے لوگ تھے. وہ ہم جنس لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کے اندر تھے، جس کو گے کہتے ہیں. مرد مردوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ رسوائی کے کام کر رہے ہیں.
निहायत बिगड़ी हुई कौम थी वो। खुदा कलाम करता रहा मगर उस पुश्त दे लिहाज उन्होंने अंदर जरा शर्म नहीं। मम्मी डैडी से जिन आजकल जैसे फ्रेंडशिप चल रही है, ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तौबा तौबा, बहुत बुरा हाल है। खुदा लाइव देखने वाले लोगों को भी कह रहा है, ऐ इस पुश्त के लोगों, खुदा के कलाम का अपने रिलेशनशिप को देखे कैसे है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। क्या वो आपके कैरेक्टर को लूज तो नहीं कर रहे? क्या वो आपको खुदा के कलाम से दूर तो नहीं लेकर जा रहे? आप जिन रिलेशनशिप के अंदर हैं, देखें कहीं पर खुदा के कलाम की तहकीर तो नहीं हो रही, देखें कहीं पर खुदा के कलाम की पासदारी की धज्जियां तो नहीं उड़ रही। देखना शुरू करें, अपनी पर्सनैलिटी को देखना शुरू करें, क्योंकि खुदा किससे कलाम कर रहा है? बोलो ना, आज की कलाम का टाइटल है ना ना ए की ए, याद रखना है कि ओ बल्कि ए इस पुश्त के लोगों, खुदा के कलाम का। भाई आप में से बहुत सारे लोग रेगुलर चर्च के मेंबर होंगे, है ना? कितने जो हर संडे चर्च आते हैं? चुक लो, मैं कुछ छोटी में फड़ी कोई नहीं, पर आज है वाली अच्छी चल रही है ना? अच्छा उठाए हाथ जरा, कितने लोग हैं रेगुलर चर्च आने वाले? थले हुण वेखो जरा सदूम अमूरज की होया। खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा है जमीन पर अब्राहम और सारा के पास। खुदा ने क्या भेजा? फरिश्तों को किसके पास भेजा? अब्राहम और उनके लिए क्या पैगाम है? खुदा उनकी नस्ल के लिए बोल रहा है। सुनिएगा जरा, आप जरा अपना ध्यान इधर रखिएगा, बड़ी समझने वाली बात करने लगी हूं। खुदा ने अब्राहम और सारा के पास किसको भेजा है? फरिश्तों को भेजा है। क्या देकर? पैगाम देकर भेजा है, क्योंकि अब्राहम खुदा से क्या रखने वाला है? वो खुदा से मोहब्बत करता है, वो खुदा के साथ इश्क करता है, वो खुदा का दोस्त है, वो खुदा के साथ वक्त गुजारता है, वो खुदा की आवाज को सुनने वाला है। उसने, खुदा ने जब उसके साथ कलाम किया है कि तू अपने नातेदारों को छोड़ दे, तू अपने खानदान में से निकल आ, तो उसने खुदा के कलाम की क्या की है? पासदारी की है। क्या की है? उसने पासदारी की है, उसने इज्जत दी है, उसने रिस्पेक्ट की है, और वो अपने नातेदारों से क्या हो गया? ओदा खानदान की सी बुत प्रस्त था। वो गैर माबूदों को जानने वाले थे, वो गैर माबूदों को मानने वाले थे। और अब्राहम का दादा और परदादा जो थे वो बुतों को बेचने वाले भी थे, क्योंकि वो अपने हाथों से बनाकर उनको क्या करते थे? बेचते थे, और वो उससे अपने इनकम सोर्स को बनाए हुए थे। और जब अब्राहम उस जगह पर बैठा हुआ था तो खुदा ने उससे कलाम किया। उसने कहा, ये बुत तेरे खुदा नहीं है, मैं तेरा जिंदा खुदा हूँ, और मैं तुझसे बोलता हूँ। ये बुत बोलते नहीं है, ये सुनते नहीं है, ये छूते नहीं है, ये तेरी नस्लों को बरकत नहीं दे सकते, क्योंकि ये खुद मट्टी से बनाए हुए हैं, मगर मैं लिविंग गॉड हूँ, मैं जिंदा खुदा हूँ। मैं तुझसे कलाम करता हूँ कि तू अपने नातेदारों को छोड़कर, अपने खानदान को छोड़कर अलग हो जा, और मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। यहां पर अब्राहम ने क्या किया है? खुदा के कलाम की पासदारी की है। जब खुदा बोल रहा है, अब्राहम सुन रहा है, और वो उसके करीब आ रहा है, और वो कह रहा है, अब्राहम मेरे बेटे, ये बुत तेरे खुदा नहीं है, ये तुझे बनाने वाले नहीं है, इनके लिए नहीं है, ये तेरे लिए नहीं है, तू इनसे बोल नहीं सकता, ये तेरी सुन नहीं सकते।
मैं तेरा जिंदा खुदा हूँ और मैं तुझ से ये कहता हूँ कि तू इन बुतों से, बुत परस्तियों से अलग हो जा। तू मेरे कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दे और मैं तेरी पुश्तों को वहां भरकर ठहराऊंगा। हालेलुया। और खुदा बोला है किसके साथ? अब्राहम के साथ खुदा बोला है। आज खुदा किससे बोल रहा है? आज खुदा आपसे बोल रहा है। और जब अब्राहम ने खुदा के कलाम को ले लिया और उसके बाद जब उसकी नस्ल नहीं बढ़ी और खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा है, अब किसके पास? आप सब जानते हैं कि अब्राहम और सारा क्या थे? बांझ थे, उनके पास औलाद की बरकत। और खुदा ने उससे वादा किया कि मैं तुझे नस्लों का, पुश्तों का, कौमों का क्या बनाऊंगा। आज आप किसी भी दुनिया के हिस्से में चले जाएं, लोग अब्राहम को अपना बाप कहते हैं। ये बरकत उसको किसने दी? कब दी? जब उसने खुदा के कलाम का, ऊंचे बोले भाई, क्या रखा? जब उसने खुदा के कलाम का, उसने अपनी जिंदगी के अंदर जिंदा खुदा के कलाम को जगह दे दी और उसने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में उसने पूरा किया। और यहां पर अब्राहम के पास कौन आया है? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡਦਾ। वजह की है? अंदर कलाम नहीं है। जिन्हों पूछो कहेगा मैनू शैतान ने बड़ा तंग किया। शैतान मैनू कहना इंज हो जाएगा, उंज हो जाएगा, ओदी बड़ी छेती सुन लेंदे हैं। कईयां दा ओही फरिश्ता बड़े होए क्योंकि उन्हां कोल ओदा कलाम है। ओए इन्हें इंज हो जाना है, उन्हें उंज हो जाना है, बस गया। पर जो कलाम को अंदर रखते हैं उनके पास फरिश्ते भी उतरते हैं, उनके पास खुदा का रूह भी उतरता है, उनमें से मौजज़ात भी होते हैं। लोग गवाहियां देते हैं कि ये यीशु की बेटी है, लोग गवाहियां देते हैं कि ये जिंदा खुदा का बेटा है, लोग गवाहियां देते हैं कि ये यीशु के लहू से धुलकर पाक और खुदा उनके लिए बोलता है। जिनके अंदर क्या होता है? जिनके अंदर लिहाज होता है। किसका? इब्राहिम ने लिहाज किया। खुदा बोला है अब कोई उम्मीद नहीं है। हालत क्या हो चुकी है? मुर्दा हालत है। उम्र का वो हिस्सा है जिसमें कंसीविंग पावर क्या हो चुकी है? डेड हो चुकी है। औलाद पैदा सलाहियत करने की जो कैफियत और हालत है मुर्दा हो चुकी है। मगर खुदा जब मुर्दा चीजों पर भी कलाम करता है तो वो उनको भी जिंदगी बख्श देता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उतारता है फरिश्तों को, जाओ मेरे बेटे के पास, जाओ मेरी बेटी के पास और उनको ये खबर दो कि मैं तुम्हें एक फर्जंद देने रीना और तू उसका नाम इसहाक रखना। हालेलुया। यहां पर ये पैगाम आ गया है। इब्राहिम ने क्या की है? कलाम की पासदारी की है, लिहाज रखा है। जरा सारे बोले, इब्राहिम ने क्या किया? लिहाज रखा। बोले टाइटल पर रहेंगे ना, क्या रखा? लिहाज। वाली बोलो की की रखे? उच्ची जी बोलो थोड़ा, तुसी भी कर लो, बस थोड़ा ही टाइम। क्या किया? उसने लिहाज किया है। किसका? जिंदा खुदा के जिंदा कलाम का। हालेलुया। और देखे फिर उसकी जिंदगी के अंदर ना उम्मीदियों में से उम्मीद पैदा हो गई। हालेलुया। उसकी बीवी भी हंस रही है, फरिश्ते सामने भी हंस के की कहती है मैं सारे पिछे गल्ला भी करी जाते हैं, हंसी भी जाते हैं, बाद चैन हो जाते हैं। उसने
نے خدا کے کلام کا کیا کیا؟ اس نے لحاظ کیا. فرشتہ اترا, اس نے اس کو پیغام دیا کہ ٹھیک اسی وقت میں جب میں دوبارہ تیرے پاس آؤں گا, تیرے پاس کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا. ایتھو کام پورا کر کے ہوں اگے جا رہے ہیں. کتھے جا رہے ہیں؟ بڑی غور طلب گل ہے. کدھر جا رہے ہیں؟ سدوم اور یاد رکھیے گا, خدا نے اس شہر کو اس کی بدکاری کی وجہ سے, خدا کا کلام کے لحاظ کو انہوں نے نہیں رکھا, اور خدا نے ان کی بدکاری کی وجہ سے, ان کی نافرمانی کی وجہ سے, ان کی ہاتھ دھرمی کی وجہ سے خدا نے اس کلام کو لے کر جب ان تک پہنچایا گیا اور انہوں نے ریسیو نہیں کیا, تو اس شہروں کے اوپر خدا نے آگ اور گندک کو نازل کیا تھا. وہ آج بھی عبرت کا نشان ہے. ایسے ہی ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کا لحاظ. ایتھے فرشتہ نسلاں دی گل کر رہے ہیں. ہن اگلے شہر جدوں چلدا ہے خدا اپنے بندیاں نوں کل رہا ہے, فرشتیاں نوں اے کہہ کے کہ سدوم اور عمورہ دی بدی دا شور بہت ود گیا ہے. خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا بول رہا ہے. خدا کہتا ہے جاؤ اس شہر میں سے میرے بندہ لوط کو نکال لو. اور خدا نے کہا کہ میں اپنے بندہ ابراہیم پر اس بات کو ظاہر کروں گا کہ میں ان شہروں کو کیا کرنے جا رہا ہوں؟ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ اور خدا ابراہیم سے بولا کہ میں ان شہروں کو کیا کرنے لگا ہوں؟ کہتا میں ان بس فارغ کر دوں گا انہوں, کیونکہ انہاں میرے کلام دا لحاظ, انہاں میرے کلام دا لحاظ. خدا قہر میں آ گیا ہے, خدا غصے میں آ گیا ہے, اور خدا بول رہا ہے اور ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ سن میرے بندے, جس شہر کے اندر لوط ہے میں سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے جا رہا ہوں. اور ابراہیم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے خدا کے ساتھ بات کرنے کی جرت کی. اس نے کہا خداوند کیا تو نیکوں کو بد کے ساتھ مارے گا؟ ہو سکتا ہے اتنے انج دے لوگ ہون جڑے ہیکل دے وچ جاندے ہون, کیا سرائی پیش کر رہی ہیں تعلیمی طور تے غلطی نہ کوئی کڈ لے, بڑے شہر لوگ بیٹھے ہوندے کیا سرائی پیش کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے چرچ جان والے ہون, ہو سکتا ہے پاسٹر نال بڑی محبت کرنے والے ہون, ہو سکتا ہے خدا دے خادماں نال بڑی محبت کرتے ہون, پر کلام دا لحاظ کوئی نہیں کر لے. وہ ادھر کہہ رہا ہے کیا تو نیک کو بد کے ساتھ مارے گا؟ پورے ابراہیم نے کیوں یہ گل کہہ دیتی؟ وہ کہتا ہے خداوند اگر اتھے کچھ نیک لوگ ہوئے, خدا بول پیا, ذرا کڈو حوالہ پیدائش دی کتاب. خدا بولا, خدا نے کہا اگر وہاں پر 50 ملے تو میں ان 50 کی خاطر سدوم اور عمورہ کو. ہن جڑا وچکار کھلوتا بھی کنفیوز ہے بیچارہ. ابراہیم کیا بنا ہے؟ سدوم اور عمورہ اور خدا کے درمیان کیا بنا ہے؟ درمیانی بن گیا ہے. وہ اس شہر کے لوگوں کے لیے, وہاں کے بزرگوں کے لیے, وہاں کی بزرگاؤں کے لیے, وہاں کے جوانوں کے لیے, وہاں پر چھوٹے بچوں کے لیے, اور جو ان کی آنے والی نسلیں ابھی ان کے اندر ہیں ان کے لیے ابراہیم کیا ہو گیا؟ خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا. وہ کہہ رہے خداوند اگر وہاں پر لوگ ہوئے, تجھے ماننے والے ہوئے, تجھے جاننے والے ہوئے, تیرے ساتھ محبت رکھنے والے ہوئے, تو خدا نے کہا اگر میرے کلام دے لحاظ نہیں رکھ دیتے محبت کیڑی ہے؟ ابراہیم کے ساتھ خدا بولا ہے 18واں باب اور اس کی پیدائش کی کتاب 18واں باب اس کی 29ویں آیت میں خدا بولا ہے آ 18ویں باب کی 26ویں آیت میں پڑھے دیتی ہوں, ٹائم کو بچاتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر 50
راست باز ملے تو میں ان کی خاطر اس مقام کو کیا کروں گا؟ خدا نے آپشن رکھ دیا. کتنے لوگ؟ وہ کہتے ہیں اگر 50 مل گئے تو میں اس شہر کو تباہ، میں اپنے قہر کو نازل، وہ کہتے ہیں میں نہیں نازل کراں گا. ابراہیم نے بھی اپنی پوچھتا پتا سی کہ کی نے بت پرست نے خدا دے نافرمان نے. ہن ایتھے ابراہیم پھر آیا خدا دے کو. خدا اگر وہاں پر 45 ہوں، کئی کلیسیاں جو خادم جاندے ہون گے، خدا من میری کلیسیا نو ودا، انہاں نو برکت دے. تے خدا اگر جائزہ لائے تو تے 50 بھی نہ ہو تے خدا کی کرے گا؟ برکت دے گا. کنفیوز ہے ابراہیم بھی. کہتے ہیں خدا من میں پھر آتا ہوں، اگر وہاں 50، اگر 45 ہوئے تو کیا تو چھوڑ دے گا؟ خدا نے کہا چل میں تیری خاطر یہ بھی کر دوں گا. ابراہیم نے پتا سی نا کہ وہ بت پرست نے بڑے ٹھیٹ نے، انہاں کسی دی کہندا خداوند اگر میں عرض کراں اتھے 45 نہیں 40 ہوندے. خدا نے کی کہا چل یار 40 ہی آنے، پر اتھے 40 بھی نہیں تھے. پھر فگر کو شارٹ کرتے ہیں، 6 بار خدا ابراہیم کے سامنے اس بات کو اس نے جب رکھا تو خدا نے کہا ٹھیک ہے. اینڈ کتنے ہویا؟ نا جی 10 پہ ہوا. وہ کہتے ہیں اگر 50 ہو، خدا نے کہا میں چھوڑ دوں گا. کہتے ہیں اگر 45 ہو، خدا نے کہا میں پھر بھی چھوڑ دوں گا. کہتے ہیں خدا اگر 40 ہو، خدا کہتا چل یار پھر بھی چھڑ دیا گا. پھر کیا؟ خدا بڑا مہربان ہے نا، دیکھیں اس کی کتنی بڑی مہربانی ہے. وہ کہتا ہے خدا اگر 30 ہو، خدا نے کہا چل میں پھر بھی چھڑ دیا گا. کتنی نرمی، کتنی محبت، کتنا احساس. کہنا چل 30 بھی ہون تے میں اسی تے 30 روپے نہیں چھڑ دے. اور لاڑے پہ یہ کہنے کٹ میرے 30 روپے کی کہنے پاوے سال پہلے دیتے ہوں اسی 30 بھی لے لیتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے خداوند اگر وہاں پر 20 ہو گئے، خدا اور نرم ہو گیا. ہاللیلویہ، پریز گاڈ. خدا کیا ہو گیا؟ بات ہے نا، شفقت کرتا ہے. وہ کہتا ہے چل یار اگر 20 بھی نکل آئے تو میں. ابراہیم نے پتا سی یہ بڑے کون کہندے اگر 10 ہو، خدا نے کہا ہن بس کر، یہ بھی نہیں نکلنے، کیونکہ میں بھی انہاں نوں جانیا، میرا لحاظ میں صدیوں سے جانتا ہوں کہ انسان بے وفا ہے. انہیں کہا چل 10 تے کر لوں کی ہوں بس. مزے کی بات وہاں 10 بھی نہیں تھے. اور لوط کی فیملی میمبرز کتنے تھے؟ 4 وہ تھے اور 2 اس کے داماد تھے، 6 لوگ. مزے کی گل 3 رہ گئے تھے، 3 نہیں گئے. چھانٹی کر لو ویکھ لو کتھے آ کے گل مکی. 50 تو شروع ہوئی تھے تے 9 تو 13 ہو گئی. کی ہو گئی؟ 9 تو 13 ہو گئی. خدا نے کہا بس ہن لحاظ ختم. ابھی بھی خدا صدیوں سے ویٹ کر رہا ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیج کر. آج بھی نسلوں کا خیال کر رہا ہے خدا. آج بھی پشتوں سے کلام کر رہا ہے. آج بھی خدا نرمی دکھا رہا ہے. چاہے یہ کلام آپ کو سخت لگا ہے، آپ کو انسلٹڈ لگا ہے، مگر خدا آج بھی لحاظ کر رہا ہے. اور وہ آج بھی کہہ رہا ہے اے اس پشت کے لوگوں کیا کرو؟ نہیں سنی. خدا نے کہا فرشتے نے سوٹ ٹنگ تھلے. ہاللیلویہ. پیالہ لبریز ہوا ہے. ہاللیلویہ. اور یہاں پر شارٹ کرتے ہیں کیونکہ میں نے ایک اور پوائنٹ کھولنا ہے. یہاں پر خدا نے کہا بس فرشتوں کو دیا. اتھے دے لوگوں نے فرشتیاں نہیں چھڑیا. لوط ان فرشتوں کو اپنے گھر لے کر گیا اور اس کے محلے کے لوگ جمع ہو گئے فرشتوں کے ساتھ بھی بدکاری کرنے کو. اور وہاں
पर लूत उनको कहता है कि मेरे इन मेहमानों के साथ इस तरह से रवैया ना करो, फरिश्ते अंदर भी नहीं मुड़े। कहने कड्डो बाहर, फरिश्ते नहीं देख लेंगे। खुदा ने अंधा कर दिया। खुदा ने कहा बस सदूम और अमोरा का शोर, इनकी बदकारी, इनकी बेहयाई, इनकी शर्म खत्म हो चुकी है। जो फरिश्तों पर भी हाथ उठा रहे हैं, जो फरिश्तों पर भी लकप रहे हैं, जो फरिश्तों की तरफ भी दौड़ रहे हैं कि ये इनके साथ भी बदकारी करे, मेरे फरिश्ते पाक हैं और मैंने उनको कलाम देकर भेजा है। अब मैं गजब में आ गया हूं और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं सदोम और अमोरा को तबाह करके रख दूंगा। और खुदा ने आसमान पर से आग को नाजिल किया और वो पूरे का पूरा शहर तबाह और नेस्त हो गया, खत्म। वहां के बादशाहों की सारी प्लानिंग खत्म। वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों की सारी प्लानिंग, जिन्होंने फसलें लगाकर वेट कर रहे थे कि हम फसलों, आपके बाद हमारी फसलें अच्छी होंगी, फसलें तबाह। भाई यहां तक उनकी नस्लें भी तबाह हो गई, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम का लिहाज, उन्होंने खुदा के कलाम का लिहाज। आज हम कहते हैं हमारे अंदर शिफा है, पर कलाम फसलें तबाह, नस्लें तबाह, सब कुछ खत्म। अगर इसके साथ यही रवैया रखा, आप चले फिरेंगे, जिंदा भी रहेंगे, मगर तबाहकुन हालत के अंदर। खुदा फरिश्ते उनके पास भेजता है जहां पर उसका कलाम होता है। खुदा रूह वहां पर भेजता है जहां पर उसका, खुदा शिफा वहां पर भेजता है जहां उसके कलाम का, खुदा फरिश्ते वहां भेजता है जहां उसके कलाम का, खुदा शिफा वहां भेजता है जहां उसके कलाम का, खुदा उन नस्लों को बरकत देता है जहां उसके कलाम का। भाई जहां लिहाज होता है, जिथे तुसी नहीं लिहाज करोगे उथे खुदा भी लिहाज नहीं करेगा। मत समझे कि खुदा बड़ा मेहरबान है, मेहरबान है, मेहरबान है। ऐ तोता चशम बन के खुदा बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है, ते दो जगली राह ते टुरे दे सीधा अग दे विच जाना। फिर उत्थे जाके पता चले नहीं खुदा बड़ा गज़ब वाला भी जे, खुदा बड़ा गुस्से वाला भी जे। हाँ, ऐसी बहुत सारी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, मगर उनकी इंतहा में आप किस ट्रैक पर हैं? लिहाज करते हैं, पासदारी करते हैं, ख्याल करते हैं? कोई नहीं। मैं नहीं कह रही, यही कह रही, अपनी रूहानी हालतों पर गौर करें। यहां पर वो कहते हैं क्या मैं बियाबान, मैं तौबा कर लीजिए। बड़ी अच्छी गल है, मैनू दुआ भी बड़ी अच्छी आ गई, मेरे वसीले उसकी खांसी ठीक हो गई, आप ही भावें डबल लगी हुई, मेरे वसीले का सिर दर्द ठीक हो गया। अपनी सिर दर्द मैं की हूं, मैं यस्सु दी, यस्सु की क्या हूं? दुल्हन। क्या हूं? ओदे ही हूं। हालेलुया। किसकी दुल्हन है? सच्ची गल है, पक्की गल है। मैं तौबा कर लीजिए, मेरे अंदर दुनिया का नूर आ गया जी, मैं यस्सु दी हो गई हूं। हुण दुनिया की कोई चीज मैनू खुदा की मुहब्बत तो भैन वेखी करार सही हो गई, हुण मैनू ओदी मुहब्बत तो जुदा। भाई दुनिया की कोई भी चीज मैनू खुदा की मुहब्बत तो जुदा। भाई भी कहेंगे मैं खुदा का होता हूं,
वेख लियो कलाम का लिहाज है भाई। वो कहता है क्या मैं बियाबान हूं? अगर आपके अंदर खुदा है, आपके अंदर उसकी मोहब्बत है, आपने उस दुनिया के नूर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, तो आप में से नूर फिर निकलना चाहिए, आप में से जिंदगी निकलनी चाहिए, आप में से खुदा की कुदरत निकलनी चाहिए। जब आप वर्शिप करें तो आपको बार बार कहना ना पड़े कि आप वर्शिप करें, आंखें बंद करें। भाई आपका ताल्लुक खुदा के साथ ऐसा हो कि वो कहे ऐ मेरी ऐ मेरी, ये मेरी ऐ इस पुष्ट के। हम कहते हैं वो एक भैन सहरा खुदा दे उहदे वसीले बड़े काम करता है, हाँ वो फलाना भाई उहदे वसीले खुदा बड़ा, ते तानू की बीमारी? तुहाडा खुदा नहीं काम कर सकदा? तुहाडा खुदा बियाबान है? तुहाडा खुदा तरीकी है? तुहाडा खुदा बोले? भाई आपका खुदा अंदर है? क्या आपका खुदा गैर मौजूद है या जिंदा खुदा है? वही खुदा जो इसके अंदर है, वही खुदा आपके दरमियान में। हालेलुया, हालेलुया। भाई असी ते फलानी कलीसिया दा हिस्सा वेख लियो, आसमानी बादशाह दा भी हिस्सा है वो कि नहीं? क्योंकि किसी एक चर्च नाल कलाम नहीं जे कर रहा, वो मौजूदा दौर दे विच इत्थे बैठी हुई हर जिंदगी नाल कलाम कर रहा है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा उनके साथ कलाम कर रहा है, और जितने लोगों तक मीडिया के थ्रू ये कलाम जाएगा खुदा उनके साथ कलाम कर रहा है कि ऐ इस पुष्ट के लोगों खुदा के कलाम का लिहाज करो, खुदा के कलाम का लिहाज करो, खुदा के कलाम का लिहाज करो। वो कहता है खुदा के कलाम का लिहाज करो। बहुत सियाने ना बनो कि मैं की बदतमीज हूं, तो फिर जगह वेख लियो कड़ी थोड़ी। मैं नहीं कह रही, कलाम कह रही। हाँ वो कहता है मैं बियाबान नहीं हूं, मैं तारीकी नहीं हूं, मैं मायूस नहीं हूं। भाई मैं तो जिंदगी हूं, मैं जहां से बहता हूं मायूसियों को खत्म करता चला जाता हूं। हालेलुया। भाई मैं तो शाफी हूं, मैं जहां से गुजरता हूं अगर कोई मेरे पल्लू को छू लेता है तो मैं उसको शिफा दे देता हूं। अगर कोई मेरे हाथ को छू लेता है तो मैं उसको शिफा दे देता हूं। अगर कोई मेरे पास से होकर बैठ के उठ के चला जाता है, मैं उसके अंदर जिंदगी का कलाम डाल देता हूं। हालेलुया। भाई मेरे गुजरने से मौजज़ात होते हैं, मेरे देखने से अंधे शिफाएं पाते हैं, मेरे बोलने से गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, मुर्दे कब्रों से मेरी आवाज को सुनकर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मेरे अंदर से जिंदगी बहती है। मैं बियाबान, असी खानदानी मसीही हां, साडा प्यो दादा भी किस भाई तारीकी थे। क्या थे? इसीलिए अभी तक उसका असर है। आज हमने इस तारीकी को तोड़ना है, आज इस बियाबान को खत्म करना है, आज इस लाचारी को खत्म करना है, आज इस बेचारी को खत्म करना है, आज कर्जे की लानतों को तोड़ना है, आज सूद की लानतों को तोड़ना है, आज हमने हर तरह की नस्ली लानतों के कब्जों को अपने ऊपर से तोड़ना है। और अगर आप इस जगह पर मुर्दा हालत में आए हैं तो खुदा कलाम करता है कि तुम मेरी आवाज सुनो और मैं तुम्हारी जिंदगियों को बदल के रख दूंगा। हालेलुया। भाई खुदा जब कलाम करता है, सुनिए, तो वो मुर्दा चीजों को भी जिंदा कर देता है। आज हम कहते हैं मैं क्या हो जाऊं? ब्लेसफुल हो जाऊं। क्या हो जाऊं? भाई आप प्रेस हो जाएंगे, ब्लेस हो जाएंगे। कैसे होंगे? आप प्रेयरफुल हो जाएंगे। हालेलुया। आप प्रेयरफुल हो जाए, आप ब्लेसफुल हो जाएंगे। हालेलुया।
अगर आप प्रे करने वाले नहीं हैं, अगर आप लिहाज करने वाले नहीं हैं, तो आप ब्लेसफुल भी नहीं हो सकते। ये कलाम है। ब्लेसफुल कितने लोग होना चाहते हैं? फिर बड़े कॉन्फिडेंस नाल कहते हैं ਅਸੀਂ ਫੇਥਫੁਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਕਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? फेथफुल। इधर देखे क्या है? और देखो कितने फेकफुल थे नहीं। आज एक भाई मुझे बता रहे, कहते हैं खादम कलाम सुना रहा हो, कहते हैं लोग कहते हैं हम फेथफुल हैं, वो कहते हैं आप फेथफुल नहीं, आप फेकफुल हैं। कितने फेक तो नहीं असी फेक मसीह। वो कहते हैं मैं बियाबान नहीं। जिंदगी ते गौर करो, किन्ना मसा है खुदा दा, किन्नी हजूरी है खुदा दी। बई असी उन्होंने नाप तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो नाप के नहीं देना, बल्कि वो फराद के नाप देता है। हालेलुया। और जो जिंदगियां खुदा का कलाम सुनती हैं, उनके अंदर से जिंदगी के चश्मे जारी हो जाते हैं। हिजकिय्याह के साथ खुदा बोला, खुदा ने उस जगह पर जो कौम बनी इस्राइल बाबल के अंदर बिखरी हुई थी, खुदा ने उनके लिए कलाम किया। और खुदा हिजकिय्याह को हड्डियों की वादी के अंदर ले गए। देखे खुदा हिजकिय्याह को कहां ले गया? सूखी हड्डियों की वादी में ले गया, और अपने बंदा को उस जगह पर खड़ा करके खुदा रोया में उसको दिखा रहा है। और खुदा हिजकिय्याह को कह रहा है, क्या ये हड्डियां जिंदा हो? भाई सूखे ईमान के साथ बैठे हुए, खुश्क जिंदगी लेके बैठे हुए, कहने यीशु दे लहू नाल धुली हुई है। भाई जेड़ी जिंदगी ओदे लहू नाल धुली होई, ग्रेस ही कुछ होर हुंदी जी। ओदा ते वेखना ही कुछ होर हुंदा जी, ओदा ते चलना ही कुछ होर हुंदा जी। वो यहां पर कहते हैं, क्या ये सूखी हड्डियां जिंदा? रूहानी तौर पे डेड, रस्मी चर्च दे मेंबर पक्के, हर संडे साडी की लगदी हाजर जनाब है जी बादशाह को लाए हैं, ते बादशाह दे बादशाह दे कलाम दा कोई कलीसिया जैसी की पक्के मेंबर, कई कच्चे पक्के भी होंगे, कई आओ जाए वाले भी होंगे। हाँ भाई जो भी हो, इसका लिहाज करो, क्योंकि यही आपको आसमान पर ले जाने का जरिया है। यहां पर खुदा कलाम कर रहे हैं। रूहानी हालतें चेक करें, रूहानी तौर पर सूखे हैं, रूहानी तौर पर डेड हैं, रूहानी तौर पर मायूस हैं, रूहानी तौर पर मुर्दा हालतों के अंदर है। और यहाँ पर वो अपने नबी से कलाम कर रहा है, और वो कह रहा है कि इन हड्डियों को देखो, इनका ईमान देखो, ये मुर्दा है, ये कहलाते मसीही है, ये कहलाते मेरे घर के लोग हैं, ये आते रेगुलर चर्च में हैं, मगर रूहानी तौर पर क्या है? मुर्दा, मुर्दा हालत है, क्योंकि कलाम का की कह रहे इस पुश्त के खुदा के कलाम का वो कह रहा की होया है? सूखी हड्डियां, बंजरपन, बियाबान, तारीकी, क्या ये जिंदा? आज क्या ये जिंदा? आज क्या ये जिंदा? वो कहता है खुदा तू ही जानता है। उसके कलाम की कुदरत बताने लगी हूं। खुदा अपने नबी को रोया दिखाते हुए कहता है, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? वो कहता है खुदा तू ही जानता है। खुदा ने कहा इन पे नबूवत कर। हालेलुया। खुदा ने कहा मेरा कलाम कर, तू देख मेरे कलाम के अंदर कैसी कुदरत है। खुदा उसको रूहानी माहौल के अंदर ले गया है। खुदा उन सूखी हड्डियों की वादी में उसको उतार कर उसको कहता है, देख मेरे बेटे, तू मेरा मंसूर है, तू मेरा नबी है। मैं तुझे बताता हूं कि मेरे कलाम के अंदर कैसी कैसी कुदरतें काम करती हैं। वो कहता है इस पुष्प से कलाम कर और इनसे कह कि ऐ सूखी हड्डियों, खुदा का, कहता है खुदा का लिहाज करो,
और उस जगह पर वो नबूवत करता है। वो कहता है ऐ सूखी हड्डियों जो ईमान में कमजोर हो, जो तुम लाचार हो, जो गुनाहों का शिकार हो, जो मुर्दा हालत के अंदर हो, रूहानी तौर पर मर चुके हो और तुम्हारी आस टूट चुकी है, तुम ना उम्मीद हो चुके हो, तुम्हारे अंदर जिंदगी का कोई नाम नहीं है, तुम्हारे अंदर खुशी की कोई लामत नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई तसल्ली नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई इत्मीनान नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई भी आगे बढ़ने का वलवला और जोश नहीं है। ऐ सूखी हड्डियों खुदा का कलाम सुनो। ऐ इस पुष्ट के खुदा के कलाम का। अगर आप रूहानी तौर पर डेड हो चुके हैं, अगर आप मायूस हो चुके हैं, अगर आप जिंदगी से लाचार हो चुके हैं, अगर दुनिया ने आपको धुतकार दिया है, अगर आप रिजेक्ट हो चुके हैं, तो खुदा अपने कलाम से आपको खड़ा करने जा रहा है। यहां पर वो कलाम कर रहा है। जरा खोलिएगा, बस लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तैयार हो जाए, खुदा आपके दरमियान में काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जी 37वां बाब और उसकी पहली आयत में पढ़े देती हूँ। यहाँ पर वो कहता है और खुदावन का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में क्या कर लिया, उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आस पास जो गिर्द फिराया और देखो वो वादी के मैदान में बाकसरत और निहायत आज मसीही पूरी दुनिया दे उत्ते की ने बाकसरत है। लोग दावा करते हैं कि हमने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में उतार लिया है, मगर अंदर यीशु कहता है वहां पर वो बाकसरत थे, मगर अफसोस दी गल उन्हां दी हालत की सी, निहायत सूखी हुई, रूहानी तौर पर डेड। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि ये खत्म है सब कुछ। मगर खुदा क्या कर रहा है, कलाम कर रहा है। उसने अपने नबी को कहा है और उसने मुझे फरमाया आदम ज़ात क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया है खुदावन, खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया तू इन हड्डियों पर क्या कर, नबूवत कर और इनसे कह ऐ सूखी हड्डियों खुदा का भाई कलाम ही तानू उठा सकता है। कलाम की कर सकता है, ये उठा सकता है, ये बहाल कर सकता है, ये ताजा दम कर सकता है, ये आपके लिए बरकत के चश्मों को जारी कर सकता है, ये आपकी नस्लों की हालत को बदल सकता है, ये आपके फ्यूचर को ब्राइट बना सकता है, ये आपके चौगिर्द मुहाफजत का काम कर सकता है और ये गुर्बत के अंदर, लाचारी के अंदर, तंग हालात के अंदर आपको उठाकर खड़ा कर सकता है। हालेलुया। वो कहता है खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर क्या करूंगा, रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। हालेलुया। भाई रूह भी उत्थे उतरदा जिथे कलाम होए, जिथे खुदा चाहे। ते कई हर तवार कहते ने रूह आ रूह आ, रूह आंदा है अगों बूहा ही बंद होंदा है। हाँ अगे सुक्की हड्डियां पईयां ने, चलो जी 2-4 गीत बस टाइम ओवर, टाइम इज ओवर, कलाम हुआ टाइम इज। खुदा भी कहना चल लगा रहा, खुदा भी की कहना लगा रहा जिथे, वो कहना लगी रहा जिथे। भाई जहां मेरे कलाम का लिहाज रखा जाएगा बरकत वहां से शुरू करूंगा, जहां मेरे कलाम की इज्जत की जाएगी वहां इज्जत को बढ़ाऊंगा। लोग कहने ने मेरी इज्जत नहीं करते, जिथे दिल करे मैनू बेइज्जत कर देंगे। भाई तू एदी इज्जत कर,
तेरी इज्जत ਨੂੰ खुदा ਵਧਾ ਦੇਗਾ। दाऊद कहता है इज्जत तेरी ਵਧਾਵੇਗਾ। भाई इज्जत दौलत शोहरत किसकी तरफ से है? ते एदा की करना है? की करना है? एदा की करना है? एदा लिहाज करना है। ठीक है। वो कहता है इन पर कलाम बोल। वो कलाम बोल रहा है। वो कहता है सूखी हड्डियों खुदा का कलाम सुनो। ऐसू की हड्डियों खुदा का कलाम सुनो। खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हें जिंदगी बख्शूंगा। और जानते हैं जब खुदा बोलता है वो एक बदन के अंदर मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं कितनी हड्डियां होती हैं, अब हम इसकी तफसील में नहीं जाएंगे और लंबा हो जाएगा। तो वहां पर पता नहीं कितनी हड्डियों के पुर्जे पड़े हुए हैं और वहां पर क्या हो रहा है? कलाम आ रहा है। कलाम के साथ तरतीब आ रही है। कलाम के साथ खुदा का रूह आ रहा है और वहां पर उन सूखी हड्डियों को क्या कर रहा है? वहां पर जैसे ही खुदा के नबी ने कलाम किया है तो कलाम अक़दस में लिखा है कि सूखी हड्डियां जो बंजर थी, जो मौत का शिकार थी, जो बुरी हालत और कैफियत के अंदर थी, जब कलाम बोला गया तो वो सूखी हड्डियां जुड़ना शुरू हो गई, उनके अंदर तरतीब आना शुरू हो गई। और वहां पर किसी भी हड्डी ने अपने इंसान के अंदर जितनी भी हड्डियां थी किसी दूसरे के साथ जाके फिट नहीं हो गई, बल्कि हर हड्डी अपनी हड्डी के साथ। आज लोग जहां मर्जी फिट हो जाते हैं, कहेंगे खुदा दी मर्जी है। कौन जो भी बाहर फिट हो जाते हैं, मेरे खुदा ने मेरे वसीले है जिंदगी तेरी नस्ल ਨੂੰ तबाह करना सी। कहणगे मैं विआह कीता है तो खुदा ने मेरे वसीले रिहा ही काम लेना सी। गलत रिलेशनशिप है। खुदा दी मर्जी सी भाई, खुदा दी मर्जी नहीं सी। उन्हें पहले कलाम दे दिता है, ਇਹਦਾ लिहाज रखा होंदा तो फिर कल इस रिश्ते का भी लिहाज होना सी। खुदा के कलाम का लिहाज नहीं है, इसमें रिश्तों में भी लिहाज नहीं है। जिथे मर्जी मुंह मारो, जो कलाम ही नहीं फिर जिथे मर्जी मारो। भाई जब इसका लिहाज नहीं है तो नस्लें बाबरकत नहीं ठहर सकती, क्योंकि वो नस्लों का खुदा है। ऐ नहीं इधरों हड्डी फड़ी तो उधर कई इन्ने ढीठ हड्डी हो जाते हैं। हाँ वो काम करके भी कहते हैं खुदा दी मर्जी सी। भाई खुदा दी मर्जी नहीं सी। आने वाले वक्तां च पता चल जाएगा, ताड़ी नस्ल चो भी लोग यही काम करनगे। दाऊद ने कीता गुनाह, ओदे मुंडियां ने भी गुनाह कीता। खुदा ने कहा हुण तलवार तेरे घर तो। भाई वो अपने कलाम के साथ खड़ा होता है। यहाँ पर वो कलाम कर रहा है, सूखी हड्डियां जुड़ रही हैं, हर कोई तरतीब के अंदर आ रहा है। उन्होंने हरकत शुरू कर दी है और देखे खुदा के कलाम की कुदरत। यहाँ पर हड्डियां सूखी हुई थी मगर कलाम नाजिल हुआ है और उन हड्डियों के अंदर जिंदगी आ गई है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा करता है, खुदा का कलाम गिरे हुए को उठाता है। खुदा का कलाम कहता है बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको। तो कईयां ने कलाम नहीं बोझ बना लिया है। मेरे उत्ते खिदमत का बड़ा बोझ है, तो भाई तू ला के रख दे। मेरी खिदमत बहुत बढ़ गई है, तू आपे भी बहुत बढ़ गया भाई। जो दियो बढ़ी तू भी बहुत बढ़ गया। लिहाज ही नहीं है। कई भैन कहेंगे साडा काम ही बड़ा सी खिदमत नहीं कर सकते। बाहर जाके कहेंगे हमें खुदा ने चुना है। क्या किए? काले हैं? नहीं मर्जी करो, भावे कॉल पे खिंच लो, हाँ भावे डांस करो, भावे मेकअप करो, भावे जो कुछ मर्जी करो, पर किसी की चुने हुए ऐसे काम नहीं। भाई अपना चुनाव देखें और अपना किरदार देखें, इसके अंदर फिट होता है। आपका कैरेक्टर इसके अंदर फिट होता है। कहाँ इसका लिहाज रखते हैं, कहाँ अपनी खुशियों का लिहाज रखते हैं। मैं आपको यहाँ पर गवाही देती हूँ। आज मैं बाहर आ गई हूँ, कल मेरे सगे मामू की बेटी की शादी है, मगर एक कॉल भी आ गई है, एक मेमोरियल सर्विस है, मैंने वहां जाना है। रपड़ा दे पै गया
पर लिहाज किदा करना है? हालेलुया, हालेलुया। चैलेंज है, खुदा के साथ चलना आसान नहीं है। मैंने किधर जाना है? पहले मेरे लिए पहले कलाम है। आमीन। आधा फंक्शन अटेंड करूंगी, बाकी खिदमत करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। चैलेंजेस आएंगे। आप अपनी खुशियों में क्या कर रहे हैं? आप अपने गमों में क्या कर रहे हैं? आप खुदा के कलाम के लिए कहाँ कहाँ कुर्बानी दे रहे हैं? मैं ये आपको गवाही दे रही हूँ, फख्र नहीं कर रही। ये खुदा की कॉलिंग है। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। इंटरनेट पर बहुत सारे खादमों ने प्रोफेसी की है। आमीन। गवाहियों का एक बड़ा हजूम, एक बादल मेरे ऊपर है। खुदा कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि अंदर क्या है? अंदर क्या है? अंदर कलाम है। कलाम भी उदों आंदा जो सच्ची मोहब्बत खुदा दे नाल आए। हालेलुया। कलाम पेश करने का सुरूर और मजा भी उदों आंदा जो अंदर मोहब्बत है। आमीन, आमीन। यहाँ पर कलाम हो रहा है। वो कहता है हड्डियां जुड़ जाएं। हड्डियां क्या होगी? उसने कहा इन पर कलाम कर, और इन पर कलाम करके इनके ऊपर नसें। हुण बोल रहा, नसां आ रही ने, शादमानी आ रही है, बरकत आ रही है। वो कह रहा है गोश्त चढ़ जाए। गोश्त चढ़ना शुरू हो गया है। कलाम का लिहाज रखा जा रहा है। कलाम को सुना जा रहा है। कलाम को अंदर उतारा जा रहा है। और कलाम की कुदरत फिर उन सूखी हड्डियों के अंदर काम करना शुरू हो गई है। गोश्त चढ़ाया है, नसें चढ़ाई है, और वहां पर कलाम हो रहा है। चमड़ी चढ़ाई है। खुशी और शादमानी का मसा उस जगह पर शादमानी के साथ खुदा का रूह उतरा हुआ है। और खुदा का बंदा कलाम कर रहा है। और वो कह रहा है ऐ सूखी हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। और वो सुनते ही झुरना शुरू हो गई है। वो कहता है इन पर नसें चढ़ जाए। उन पर नसें चढ़ना शुरू हो गई हैं। कलाम का लिहाज रखा जा रहा है। वो कहता है इन पर गोश्त चढ़ जाए। उन पर गोश्त चढ़ना शुरू हो गया है। वो कह रहा है इन पर चमड़ी चढ़ जाए। उन पर चमड़ी चढ़ना शुरू हो गई है। और उस जगह पर एक जिंदगी बख्श काम हुआ है। और एक बड़ा लश्कर उस जगह पर उठ खड़ा हुआ है। हालेलुया। और फिर कह रहा है कि मैं रूह को नासिल करूंगा। रूह ऐਵੇਂ नहीं आ जाता भाई, पहले लिहाज करना सीखो। आप उसकी आवाज को सुनना शुरू करें, आपका मसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप उसकी आवाज को सुनना शुरू करें, खुदा बरकत देना शुरू कर देगा। आप उसकी आवाज को सुनना शुरू करें, वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करना शुरू कर देगा। कोई थोड़ा सा लिहाज करो, इतने बड़े हो भाई, उसके कलाम का लिहाज करना शुरू करें। आप रूहानी तौर पर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप उसके कलाम का लिहाज करें, आपके अंदर से नेमतें ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी। आप खुदा के कलाम का लिहाज रखें। आपको कहना नहीं पड़ेगा मेरे लिए दुआ करे हो, तुसी दुआ करोगे और खुदा आपकी दुआ को सुनकर जवाब देना शुरू कर देगा। हालेलुया। ऐ इस पुष्ट के कुछ दे ख्याल करो। ऐ इस पुष्ट के खुदा के कलाम का लिहाज करो। वो कहता है लिहाज करो। कोई हड्डी नहीं गलत जगह पे गई। ऐ इस पुष्ट के लोगों, खुदा के कलाम का लिहाज करो। साडे लोगों ने सिर जो डंडा पैंदा ना, फिर रोंदे पिटदे। इन्ना सोहना सम बनाया ऐ, फिर भी ऐ इंज चल रहा। खुदा के कलाम का ना कीता, मैनू नहीं पता की होना। फिर अगे दसिया ने की होना, अगे की होएगा है? वो खलोता आएगा बाहर। यदि तवज्जो होर पासे फड़ो, इन्हें लिहाज पूरे का भी लिहाज। धज्जियां हो जाती हैं खानदानों की, इज्जतों की। किस वजह से? नहीं जी, जबरदस्ती ले गए। वो कहता है अगर तुम खुदा के कलाम का लिहाज रखने वाले हो, किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है तुम्हें टच भी कर जाए।
किसी माई दे लाल की जुरत नहीं तुहाडा रस्ता रोक जाए। आमेन आमेन। किसी की जुरत नहीं तुहानू ललकार जाए। अगर जिंदगी च की है लिहाज है किदा, कई कहते मैं चर्च जाना तो नहीं सी, बस वो फलाना भाई आया वो लिहाज विच मैनू मैं जाना तो नहीं सी, किन्ने क्या ही जा, बस वो मेरे फलाने भरा ने क्या, फिर खुदा के खादम की इज्जत रखी, पर कलाम दी मैं ओदा लिहाज कर लिया, पर ओदा वो अपने कलाम की गैरत रखता है। आप लोगों का लिहाज करते रहेंगे अगर जमीन पर खुदा के कलाम का लिहाज नहीं किया तो फिर खुदा भी आपका लिहाज बोलो हम खुदा के कलाम का लिहाज करो। ठीक है, हाथ रखो जरा, 3 बारी बोलो। गल बड़ी हालेलुया हालेलुया। भाई मैं आपको बता दूं, वक्त बहुत करीब आ चुका है। यीशु मसीह जानते हैं कलाम में रकम है कि एक छोड़ दिया जाएगा और एक, वो कहता है एक छोड़ दिया जाएगा। वो वक्त आने वाला है जब मोहरें खुल चुकी हैं, वो वक्त आने वाला है। इधर देखें, एक उठा लिया जाएगा और एक ले लिया कौन जाएगा? जिदे अंदर की होएगा, जिदे अंदर की होएगा कलाम का, जिसके अंदर क्या होगा? भाई आप रेगुलर दुआ करने वाले हैं, रेगुलर चर्च जाने वाले हैं कि अगर ना होया तो फिर उत्ते भी जाना, भावें को असी हवा च उठ जाना, इत्थे ही उठोगे, इत्थे ही नसे फिरोगे। किथे होना चाहिए? दिल ते हाथ रखो। बोलो, मेरे पीछे बोलना है। मेरे दिल च होए, मेरी जिंदगी च होए, मेरे बोलन च होए, मेरे वेखने च होए, मेरे पहनने च होए, मेरे खान पीन च होए, मेरे रहन सहन च होए, मेरी जिंदगी दा अवल हिस्सा होए, मेरी जिंदगी दी मोहब्बत होए। प्रेज गॉड। मेरी जिंदगी दी ते एक ही होए, किन्नी होए? ऐ ही होए, फिर गल बननी जे। हालेलुया। इस पुश्त के खुदा के कलाम का, इस पुश्त के लोगों, इस पुश्त के लोगों, कहता है इस पुश्त के लोगों खुदा के कलाम का। आओ जरा कदमा से खड़े हो जाए, दुआ मांगे, चंद मिनट सब भूल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। मांगे मांगे मांगे, चंद मिनट दुआ करेंगे। तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। आए बंधनों को तोड़े इसी जगह पर, आज सब कुछ तोड़ कर जाए और कहे खुदावंद ऐ जिंदगी तेरी है, ऐ जिंदगी तेरी है, ये जिंदगी तेरी है। जी दुआ मांगते वर्शिप करेंगे। हालेलुया। अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे, वो तोड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, बीमारी के बंधन टूटे, तोड़ दे, बेचारी के बंधन टूटे, तोड़ दे, खामोशी के बंधन टूटे, कब्ज के बंधन टूटे, अपने रूह अल्लाह की नस्ल दान हो गए।
पूरी की हुई है। और मैं तेरी जिंदगी में बड़ी काम करने जा रहा हूँ। तू जिस दौर से वफादारी में खड़ी है, मैं तेरे लिए बड़े कामों को करने जा रहा हूँ। और मैं तेरी मायूसियों को सावधानियों में बदल दूंगा। मैं तेरी जिंदगी में जश्नों को जारी करने जा रहा हूँ। और तुम्हारी अपने लिए सारा करने जा रहा हूँ।